Keshav, you also attend my lecture. Sorry? Keshav sir, Yes, ma'am. you also attend my lecture. To all my students. Good evening. गुड इवनिंग इतना ठंडा ऐसा गुड इवनिंग मतलब हम इंटरेस्टेड ही नहीं है कि पता नहीं बोर होने वाला है या फिर इतना अच्छा बारिश गिर रहा है, वी आर अटेंडिंग लेक्चर्स, मे बी दीज माइट बी द थॉट्स यू माइट हैव इन यू, इजंट इट? यू माइट बी थिंकिंग अबाउट ऑल दिस। ये इतना अंधेरे में कौन बैठा है यहाँ पे? अच्छा, ओके, सो एवरीबॉडीज वीडियोस आर ऑन। ओके, हाँ ये सब बारिश है, राइट। तेरे घर पे लाइट नहीं है क्या? ये बाहर बारिश हो रही है। घर पे लाइट नहीं है क्या? मैंने बाहर का नहीं, बाहर का तो मुझे भी दिख रहा है बारिश हो रही है। मम्मी सोई इसके लिए नहीं डरा। Oh, how caring, huh? Nice. Okay, fine. So चलो फटाफट oral ले लेते हैं. I hope everybody is ready for the oral. So today we can start from Vaishnavi. Yes, miss. Okay, so mute yourself. मी जेव्हा विचारेल तेव्हा unmute कर. Okay. Before that, what was the last? Which was the last phylum we have completed? Arthropoda. Okay. So Vaishnavi will tell me one characteristic of arthropoda, the basic characteristic. Look here, please. I can see you. Yes, Devika. They have largest number in the planet Earth. They are of all habitats. They found in all, right from the deepest ocean to highest mountain. They have joint appendages, hence called arthropods. Example: Okay, so millipede, I centipede, actually, crab. very good, very good. So I actually expected that as the first point. जो तुमने बोला ना कि मतलब joint appendages, that's the only basic characteristic for arthropod. Are you getting my point? So Vaishnavi काय झालं? अभ्यास नाही केलाय? बोल. का नाही केलाय अभ्यास? तुला माहितीये ना मी नेहमी ओरल घेत असते. लास्ट लेक्चरला होतीस? नव्हती? होती? नाही. हो. ओके, ठीक है. Yes, Naneshwari, ready? Yes, Okay, miss. so Naneshwari will tell me something about Annelida. Body of this animal is long, cylindrical, and metamerically segmented. Most of these animals are free living, and few are. Segmented. मी तेच बोलले मिस. बोल ना मी ऐकते. Most of these animals are free living, and few are ectoparasites. Free living animals are maybe marine water dwellers or fresh water dwellers or terrestrial. This body of this animal are triploblastic, eucoelomate, bilaterally symmetrical, and this animal have a special type of cuticle on their body. They have setae. What do you Parapod- mean by eucoelomate? Eucoelomate animals with true body cavity. Okay, ठीक है. Triploblastic. Triploblastic, they have animals made up of 3 germ layers: ectoderm, endoderm, and mesoderm.
Very good. Nice. Mute yourself. I'm satisfied with Devika's answer. I'm satisfied with Yaneshwari's answer also. Good. अभी हम किसी लड़के को पूछते हैं. Yes, Hitesh. Yes, miss. Ready? Yes. Okay. So Hitesh will tell me about Escalamintis. 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 Tell me. बुक में देख के नहीं बोलना है. मिस बुक पे नहीं दे, बुक ऑन ही है. Escalamintis. ऐसे सामने देखो वीडियो में. Others, be prepared, please. Nihit, you are next. Okay. Next question goes to Nihit. Yes, yes. So Nihit will tell me something about Porifera. Ma'am, these animals. एक मिनट प्लीज, थोड़ा पहले का ना रिवाइज करने को याद. These animals have numerous pores on their body, hence they are called as sponges. So they are attached to the base called substratum, due to which they do not show any locomotion, hence they are called as sedentary plants. You either use, okay, हाँ, you either use one word, एक तो substratum use करो, नहीं तो फिर base use करो, anything will. Okay. Example, Euspongia and Euplecta. Euplecta. Okay. ठीक है. Now you tell me example of Annelida. Ma'am, examples of Annelida, है ना? Just one example. Leech, earthworm, Okay. and Nereis. ठीक है. ये तो देख के ही बोला है, पक्का बोल, सच्ची बोल. नहीं मैम, बुक बंद है, देखो. अच्छा, पक्का ना? ओके, गुड, ठीक है. Srishti, were you there? Srishti, Yogesh, Survade, were you there for last lecture? Are you a newcomer? I'm not able to hear you, beta. It is my second lecture. So last lecture you were there, right? Okay, fine. Okay, किसी और को भी. चलो, अरे अनघा बाकी है, आरुषि बाकी है. आरुषि. मिस फिर से बोलो. Are you done with your studies? अच्छे से हुआ नहीं है. अच्छे से हुआ क्यों नहीं. अच्छे से नहीं हुआ है? कब से चालू किया है टॉपिक? म्यूट योरसेल्फ. अगर टॉपिक कब से स्टार्ट किया है, यू आर सपोज टू स्टडी इट ना, एवरी लेक्चर यू आर सपोज टू सी. अभी तक तुम्हारा कहाँ एनालिडा तक हो गया ना अपना, तो वहां तक तो हो जाना चाहिए था पूरा पढ़ के. एंड आई थिंक वी आल्सो हैव लॉट ऑफ गैप इन लेक्चर्स, राइट? ऐसा भी नहीं है कि फ्रिक्वेंटली ले रहे हैं, गैप बहुत है. ऐसा लिटरली आई थिंक 8, 10, 15 डेज तक अपना एक ही टॉपिक चलता है. सो बीच में या बिफोर प्रायर टू माय लेक्चर एटलीस्ट यू कैन रीड फॉर 5 to 10 minutes. दैट इज मोर देन इनफ आई फील. यस, नेक्स्ट अनघा. Anagha will tell me about
all types of symmetry. Types of symmetry. First one, coelho, that is body cavity. Then germ layer, then body symmetry. You have heard it wrong. You are going into coelomates. I am asking you about symmetry. Types of symmetry, body symmetry. Okay. Types of body symmetry, asymmetrical, bilateral symmetrical, radial symmetrical. Yeah, that's what I was expecting. You went into coelom, that is body coelom. So what you were answering, that is a different. I thought of body organization. So ये कब होगा? No, I understood that you were answering about types of body cavities, right? And I asked you about body symmetry. So this is how you're supposed to remember. Symmetry तुमको at least पता होनी चाहिए कि अच्छा ये है, जैसे उसको पता था. So Kashish will tell me now about body coelom के बारे में बताओ. Types of body cavities जो तुमने ऑलरेडी लास्ट एक बड़े से टेबल में लिख चुके हैं, तुमको पता होना चाहिए मेरे हिसाब से. Why are you confused? मिस वॉइस ब्रेक हो रहा था आपका, इसीलिए. अभी आ रहा है? हाँ. ओके. टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी. आंसर. बॉडी कैविटी, एसिलोमेट, एसिलोमेट, ईसिलोमेट, सीडोसिलोमेट. ईसिलोमेट. Acylomate is right. Ecylomate. Pseudocylomate is right. Ecylomate is wrong. Acylomate मतलब जिसमें बिल्कुल भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, राइट? Pseudocylomate मतलब अपीयर होगा बट एक्चुअली फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है. और एक है जो इम्पोर्टेंट है, ट्रू कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी. हाँ, ट्रू कैविटी, राइट. बट व्हाट इज दैट टर्म? हम मीनिंग से तो नहीं लिख सकते ना. वी हैव टू यूज द टर्म्स देयर. यस, राइट. ई तो नहीं है, ई के आगे और एक लेटर है, राइट? तब जाके वो फॉर्म होगा. यूसिलोमेट. यूसिलोमेट. तो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, लाइक उसका प्रोनाउंसिएशन विल बी eucoelomate, but that is EU, that is the true cavity in the body. Okay, chalo, let's move to next person. Yes, Nihal. Yes. Where are you? Okay, so today I can see your face and I'm so happy. हाँ, घर पे, obviously everybody is at home. I'm very happy to see your face today. इतने lectures में कभी देखा नहीं है, तो आज थोड़ा पीछे आके देखिए. कैमरा ऑन था मेरा? कभी तो बंद ऑन था ना. आज बंद है. आज चार्जिंग पे लगाया मैंने, वायर पे. ओके, ठीक है. बताओ अबाउट 3 जर्म लेयर्स के बारे में बताओ फटाफट. हाँ, वो इंडो, एक्टो, मेसो. एक्टो बाहर का है, इंडो अंदर का है, और मेसो मिडल. मेसोडर्म, एंडोडर्म. हाँ, वेट इतना Triploblastic. Such an incomplete answer you're giving me. I need proper English form state. What are you saying? I'm asking you something and you're saying something else only. Please form a proper. There are 3 germ layers: ectoderm, endoderm, और mesoderm. First listen to me. मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो, उसके बाद अपना आंसर चालू करो. My question to you is, name the 3 germ layers with explanation. So you are supposed to name the germ layers first and then you have to say about its location. या फिर जो तुमने अभी terms use किया, that is what is triploblastic, what is diploblastic, that you have to use. So properly statement. और ऐसा एकदम राउडी जैसा आंसर मत करो. हाँ, ये बीच में का, ये वो. No, एग्जाम ऐसा लिखेगा, बीच का लेयर, बाहर का लेयर, आउटर लेयर. बोलो नहीं ना. Supposed to say it in a proper statement. Continue. Ectoderm, outer layer. Ectoderm is the outer layer of the skin. Mesoderm is the layer present between ectoderm and endoderm. Okay. Endoderm, layer of skin present inside. Inside मतलब किधर? Inside the body. Innermost बोल सकते हो? Organs
कैविटी के बाजू में, ऑर्गन द कैविटी। व्हाट, क्या 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 क्या, मतलब कंफ्यूज पूरा, मेरा बायोलॉजी तू रॉन्ग कर देगा पूरी तरीके से। डेफिनेशन में सिंपल सा वर्ड है एंडोडर्म। हाँ डेफिनेशन सब दिया है टेक्स्ट बुक में, लेकिन अगर तुम लोग पढ़ोगे तो तुमको पता होगा ना। मैंने वो पढ़ा है। एंडोडर्म लेयर विच इज प्रेजेंट, इनर मोस्ट लेयर जो होता है उसको एंडोडर्म कहा जाता है। मिडल मतलब एंडो अंदर वाला लेयर, और आउटर लेयर के बीच में जो होता है उसको मीजोडर्म कहा जाता है, और सबसे आउटर वाला जो लेयर रहेगा उसको बोलेंगे एक्टोडर्म। ओके, डिफाइन डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक हैविंग 2 germ layers, animals them. having 2 germ layers। डिप्लो पूछा ना आपने। नेम द germ layers, कौन सा हो सकता है? हाँ बट कौन सा हो सकता है? टेल मी द पॉसिबिलिटीज आल्सो ना। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसो भी हो, बस मेसोडर्म भी हो कभी भी। सकता है। तीनों में से वी कैन हैव आउट ऑफ 3 2। So please answer it in a proper way, please. Animals having only 2 germ layers. Example: ectoderm, endoderm, and mesoderm. स्टार्टिंग का सही है, लास्ट का बराबर नहीं है। Animals having or animals pursuing any two of the constituting of any 2 germ layers. It can be either ectoderm, endoderm. It can be mesoderm, endoderm. It can be ectoderm, mesoderm. Anything out of that. So these are the possibilities. What do you mean by एग्जाम्पल लिख से नहीं बोल सकते क्या? एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल एक्टोडर्म बोल एंडोडर्म सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते। लेकिन तुमने सिर्फ किसका नाम लिया? सिर्फ एक्टोडर्म एंडोडर्म बोला, मिजोडर्म को तो लिया ही नहीं ना किसी के साथ एज अ पार्टनर। So you have to include mesoderm also ना। Animals having all 3 germ layers present in the body are called triploblastic. Example: ectoderm, endoderm, and mesoderm. एग्जाम्पल नहीं आएगा बाबा, एग्जाम्पल नहीं आएगा। यही एग्जाम्पल तुम कब लिखते हो? जब तुम्हारे पास 10 एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रही हूँ। अगर मैं आर्थ्रोपोडा के बारे में बात कर रही हूँ तो आर्थ्रोपोडा हैज हनी बी, कॉकरोच, क्रैब, मिलीपीड, सेंटीपीड। तो इसमें से आप 2-3 बताओगे तो यू से एग्जाम्पल दिस एंड दिस। अब ये लेयर्स तो 3 ही प्रेजेंट है ना, कुछ और थोड़ी है उसके अंदर। So you have to present all 3 of these by saying triploblastic are the organisms constituting of all the 3 germ layers: ectoderm, endoderm, mesoderm. So what? Ma'am, your voice is not audible. Okay. So what the problem is happening? I'll tell you. तुम लोगों को answers पता है, but you people are not able to form the sentences. Am I right? Yes, miss. You people know the answers, तुमको definition पता है, तुमको सब कुछ पता है कि अच्छा इसका ये है, इसका ये है, but you are not able to form the answers because there's a problem in your communication right now. अभी घर पर हो तो अपने मदर टंग में बात करते होंगे, that is fine. नॉर्मली फ्रेंड से बात करते हो तो हिंदी में बात करते होंगे। इंग्लिश बात आप तभी करोगे जब हम लोग में से कोई टीचर्स या स्कूल टीचर्स या क्लास टीचर्स आर टॉकिंग टू यू एंड इफ दे आर आस्किंग यू समथिंग, तभी आप लोग इंग्लिश का यूज करते होंगे। अदरवाइज उसके बिना, उसके अलावा तो आपका कुछ यूज है ही नहीं इतना इंग्लिश का। एंड दैट इज अफेक्टिंग वेयर, यू नो, दैट इज अफेक्टिंग एट योर आंसर्स। सो दैट वाज नॉट जस्ट फॉर ओनली हिम, इट इज फॉर एवरीबॉडी। जितना ज्यादा रीडिंग करोगे, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। जितना ज्यादा रीड करोगे, खास करके ये चैप्टर में अगर डिफिकल्ट वर्ड्स दिख रहा है तो जितना ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करोगे वो ज्यादा सही रहेगा। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, देख लेंगे, ठीक है। अभी और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आने बाकी है, कैसे याद रखोगे? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, राइट? ओके, सो फाइन, वी कैन मूव एंड ओके, वी कैन मूव टू Sabarish now. Yes. Okay, so Sabarish will tell me about all the phylums का, tell the names of all the phylums जितना हमने लास्ट लेक्चर तक कवर किए। लास्ट 2 लेक्चर में कि सिर्फ लास्ट के वो 3 फाइलम्स? स्टार्टिंग से जो हमने पॉरीफेरा से स्टार्ट किया तो वहां से लेके लास्ट लेक्चर तक जो भी कंप्लीट किया मुझे सबके नाम बताओ।
phylum Porifera, phylum Nidaria, phylum Protozoa, phylum Platyhelminthes, phylum प्रोटोजोआ नहीं है, नो Aschelminthes, नो नो, प्रोटोजोआ या phylum Annelida and phylum Arthropoda. एस्केलेमेंथस, ठीक है, ओके. एनीथिंग मिस्ड? अदर्स? Any of the phylum missed? Others you can check. No, ma'am. No? मिस कुछ नहीं किया, उसने ऐड कर दिया, प्रोटोजोआ डाल दिया बीच में, जो एग्जाम्पल है ना सबारिश? प्रोटोजोआ एडिशनल डाल दिया. प्रोटोजोआ इज नॉट अ फाइलम. प्रोटोजोआ इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, Porifera, Aschelminthus, Annelida, these are the examples of the phylums. Am I clear till here? Okay. Shall we move ahead now? We can go to the next phylum. Okay. So चलो मैं share कर देती हूँ और हम लोग next phylum immediately start कर देंगे. Can you all see the screen? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Okay. Okay, अपना चैप्टर भी आ गया है. तो एनालिडा हो गया था. आर्थ्रोपोडा फिनिश किया था हमने. Yes, miss. मोलस्का किया था. नहीं करना है. करना start. Okay. चलो फिर मोलस्का स्टार्ट कर देते हैं. Body of these animals is soft and slimy. What do you understand by the word slimy? Slippery. Slippery, exactly. फिशेस को अगर आप हाथ में लेते हो तो देखो आसानी से वो अपने हाथ में नहीं आते, बिकॉज उनका स्किन इज मतलब होता है ना आउटर ऐसा वैक्सी कोटिंग जैसा उनका वो स्किन रहेगा या स्लाइमी रहेगा. Hence these are called as mollusk. So you have to remember the name कि mollusca is the phylum और इनको mollusk कहा जाता है. So this is something important. This is second largest phylum. Which was the first largest phylum? Arthropoda. Very good. First one was Arthropoda. Second is Mollusca. These animals are aquatic. So अभी सबको aquatic terrestrial का meaning पता है? Yes, miss. Yes. बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बिकॉज हमने उसको बहुत बार रिवाइज किया है. ठीक है. कुछ मरीन भी होते हैं, कुछ फ्रेश ड्वेलर्स होते हैं. सो मरीन मतलब सी वाटर में रहेंगे, फ्रेश ड्वेलर्स मतलब ड्रिंकिंग वाटर में रहेंगे. ठीक है. Body of these animals is triploblastic. All the three germ layers are present. Eucoelomate, absolute true cavity, non-segmented मतलब plain structure रहेगा, segment नहीं दिखेंगे, and soft. Except animals like snail, their body shows a bilateral symmetry. Snail को अगर आपने observe किया है तो उसको exactly you have two antennas देखा, ऐसा दो antenna जैसे present होते हैं, वो उनको help करते हैं to locate things. Okay, so वो उनका क्या है? Eyes है, ears है, क्या है वो? Eyes है शायद से. Eyes है कि ears है? Ears है. Ears है. मैम eyes है. अच्छा ये सबको होमवर्क फाइंड आउट प्रॉपरली. स्नेल का देखेंगे अच्छे से घर पे जाके. देखो नहीं घर वो घर पर ही हो, सॉरी. सो यू कैन सो काइंड ऑफ होमवर्क टू योर पीपल कि स्नेल का स्ट्रक्चर देखो एग्जैक्टली ऐसा टू एंटीना जैसा रहेगा. वो क्या है? अगर आप उसको बीच में से कट करते हो पूरे शेल के ऊपर से, so what happens, it exactly gets divided into two equal halves. ठीक है. तो वो हो गया कि वो बायलैटरल सिमेट्री है. Body is divided into three divisions: head, foot and visceral mass. Head, foot तो हमको समझ में आया. Visceral mass मतलब एक्स्ट्रा मास जिसका शायद जरूरत नहीं है. तो मैम विसरल मास क्या है? तो शेल रहता है ना स्नेल के ऊपर, वो शेल उसको क्यों दिया है? सो दैट इज लाइक अ विसरल मास, okay, which is covered with a mantle. Now what is mantle? This mantle secretes a hard calcareous which is made up of calcium, the shell. This shell may be external or internal or even absent in some of the cases. अभी यहाँ पे external है कि internal है स्नेल के केस में? External. एक्सटर्नल है, यस, बिकॉज उसका बॉडी अंदर है और शेल बाहर की तरफ है, तो शेल कैसा हो जाएगा? एक्सटर्नली प्लेस्ड हो जाएगा. फाइन, समझा. These animals are unisexual. What is unisexual here now again? System will be in different bodies.
डिफरेंट, तो यू कैन से मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर डिफरेंट. एग्जांपल बाइवॉल्व, वहां पे आपको बाइवॉल्व दिया, देखो जिसको मराठी में शिंपला ऐसा हम बोलते हैं. एंड स्नेल को सबको पता है, ऑक्टोपस भी सबको, एवरीबडी नोज अबाउट ऑक्टोपस. सो आई थिंक मोलस्का इज वेरी इजी. उसमें से सिर्फ पॉइंट्स तुमको याद रखने हैं. मेन उसमें विसरल मास के बारे में बात करना है, जिसमें मेंटल के बारे में बोला गया है. सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर देयर. ठीक है, आई विल मूव अहेड टू एकाइनोडर्मेटा. ओके, फाइन. So, Kashish, can you read this? Echidermata. Yes, ma'am. Phylum. Echinodermata. Dermata कुछ भी चलेगा, बोलो. Phylum Echinodermata. Circular spines are present on the body of these animals, hence they are called as echinoderms. Second, these animals are found only in ocean. Third, their body is triploblastic eocelomate and its radical symmetrical in adult stage. However, they show bilateral symmetry in a larval stage. They perform locomotion with the help of the tube feet. Tube feet are also useful for capturing the prey. Some of the animals are sedentary. They have a skeleton made up of a calcareous spine and or ossicles. That is plates. Ossicles, plates. These animals have good ability of regeneration. These animals are mostly unisexual. Example: starfish, urchin, sea urchin, brittle star, sea cucumber, etc. Okay, so if you see here, Kashish, you need practice of reading. Okay, so you're supposed to read every day at least a page, half a paragraph, one whole paragraph, whatever according to your convenience, but please read every day. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Calcareous spines are present on the body. Now, सबसे पहली बात ये है कि echinodermata, according to the name, echino is a half word and dermata, so that is skin. So उनके skin पे spines present होंगे, या उनके you can say outer layer के ऊपर you will have spines present, and hence they are called as echinoderms. Am I audible to all of you clearly? Yes, miss. Yes, miss. Yes. Okay, fine. So उनके body पे spines present होना, that is a sign, that is a symbol that these are echinoderms. These animals are found only in ocean. ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक पता है, यूसिलोमेट पता है, रेडियली सिमेट्रिकल पता है, और क्या दिया है, शो बायलैटरल सिमेट्री. अभी लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज में क्या डिफरेंस है, कोई बता पाएगा मुझे? लार्वा चाइल्डिश, मतलब बचपन का स्टेज रहता है. ओके, सो बचपन का मतलब वो एग्जैक्टली कौन सा स्टेज रहेगा? लाइक फॉर एग्जांपल एक एग है, हैच हो गया, आफ्टर दैट इमीडिएटली ऑर्गेनिज्म बाहर निकलेगा, वो है उसका लार्वा, दैट इज द लार्वल स्टेज. सिल्कवर्म में तुम लोग पढ़ोगे, आई थिंक 9th में पढ़ा है ना, सिल्कवर्म का लार्वा, प्यूपा. ओके, देन यू हैव द एडल्ट. ठीक है, तो ये लार्वल स्टेज में है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, एडल्ट स्टेज के बारे में. तो स्टेजेस जानना भी जरूरी है. ओके, आगे का देखते हैं. ओके, सो यू कैन से दैट रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं एडल्ट स्टेज में, और बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है लार्वल स्टेज में. तो हो सकता है लार्वल स्टेज विल बी अ बिट स्मॉल, तो उसमें एग्जैक्टली 2 हाफ्स में वो डिवाइड होगा, बट जैसे जैसे उसका साइज बढ़ते जाएगा वो 5 प्लेन्स बढ़ते जाएंगे. ठीक है, जैसे देखो स्टारफिश का मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा, 1 2 3 4 5. ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्या दिया है, दीज एनिमल्स आर सिडेंटरी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड सिडेंटरी? Do not show locomotion. एग्जैक्टली, तो वो एक ही जगह पे रहेंगे, फिक्स रहेंगे, सो ज्यादा से ज्यादा वो लोग लोकोमोशन नहीं दिखाएंगे. ओके, दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट. अब ट्यूब फीट नीचे मतलब ऐसा फॉल्स फीट जैसा वो प्रेजेंट रहेगा, जो यूजफुल रहेगा उनके प्रे को पकड़ने के लिए.
तो ऐसा हमने और एक एग्जाम्पल पढ़ा था जहाँ पे प्रे को पकड़ने के लिए वो उनका एक बॉडी पार्ट यूज करते हैं. व्हाट वाज द एग्जाम्पल इफ यू रिमेम्बर? Nidaria. हाँ, वेरी गुड. इट्स हाइड्रा इन निडेरिया में हमने देखा. तो निहित का ये आंसर था. निडेरिया इज योर फाइलम का नाम. मैंने एग्जाम्पल पूछा, सो हाइड्रा हैज टू बी योर आंसर. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, miss. They have skeleton made up of calcareous spines होगा या ossicles, मतलब प्लेट जैसे स्ट्रक्चर रहेंगे, या फिर you will have spines. Spines तो समझ में आता है ना सबको. सी अर्चिन को ही देख लो कितने स्पाइन्स है इसके ऊपर. ठीक है, you have plate like structure और you can have spine like structure. So इसीलिए उसको ossicles कहा जाता है. They have good ability of regeneration. Okay, they are unisexual, ये भी हमको पता है. एग्जाम्पल कोई भी इसमें से दो बाय हार्ट कर लो. सी कुकुम्बर, starfish, फिर brittle star, anything of that, that is your choice, but at least 2 examples आने चाहिए. ठीक है, फाइन. उसके बाद में फाइलम हेमिकॉर्डेटा. जस्ट अ मिनट. we will read about phylum hemichordata. Yes, Srishti, can you read? You read a point Yes, and you miss. stop. Then I explain you simultaneously. Phylum Hemichordata. First, body of this animals is divided into 3 parts as proboscis, collar, and trunk. Okay, so वहां पे जो example दिया है तुमको, can you see me in the video? Yes. Yes, miss. Okay. वहां पे जो एग्जाम्पल दिया है, एक बलांगलोसिस करके एग्जाम्पल है, एक सैकोग्लोसिस करके एग्जाम्पल है. सो बलांगलोसिस जो है वो उसका जो स्ट्रक्चर है, आधा उसका जो बॉडी है उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और आधे बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है. तो मैम इसका क्या मतलब होगा? हम कौन सा फाइलम पढ़ रहे हैं? हेमिकॉर्डेटा. हेमी का मतलब होता है हाफ. हेमिकॉर्डेटा, half chordate, half notochord. मतलब half body will be having notochord presence and half of the body will be absent in the notochord part. तो मैम इसे क्या समझेगा कि proboscis is going to have the notochord present. Proboscis is the area जो starting में रहेगा. So proboscis, second क्या बोला है? You have proboscis, then you have collar, right? Yeah. So proboscis and collar. So proboscis area में notochord present रहेगा और बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है बलांगलोसिस का, उसमें notochord absent रहने वाला है. इसीलिए इसका एक ही हिंट है नाम के हिसाब से, हेमिकॉर्डेटा, half body covered, or you can say half body having chordata, chordate या फिर having notochord. अब notochord क्या है ये नहीं पूछना. सबको पता है ना कि नहीं? Yes, नहीं तो बोलेंगे मैम Yes. नोटोकॉर्ड वापस बताओ, तो मुझे वापस नोटोकॉर्ड बताना पड़ेगा. सो डोंट डू दैट. ओके, फाइन. लेट्स मूव अहेड. यस, रीड. Notochord is present in proboscis region only, hence they are called as hemichordates. Okay, continue. This I told you. These animals are also called as acorn worms. These are Yes. marine animals, live in burrows in sand. They have one to many. Okay, wait. So you know what are marine, right? Marine मतलब sea water में जो present रहेंगे. Live in burrows. What are burrows? Holes in the land. Holes. एग्जाम्पल बताओ किसी और का एक्सेप्ट दिस. इसको बरो करते हुए देखा है, जो बरो में रहता है. Rabbit. Rat, rabbit, and even snakes you can see making burrows, right? Yes. Yes, ma'am. Let's continue reading. They have one to many pharyngeal gill slits. Okay, one to Yeah. many pharyngeal gill slits. So what are pharyngeal gill slits, Sabarish? Yes, Sabarish, what are pharyngeal gill slits? Yes, ma'am. What are pharyngeal gill slits?
फिश का वो जो अपर बॉडी जिसमें ऐसा मार्किंग्स रहता है। नो, कहाँ पे मार्किंग है? गिल्स का मतलब क्या है वो बता। जहाँ से फिश सांस लेते हैं। रेस्पिरेशन। यस। ओके, तो फेरिंग्स के यहाँ पे प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे फेरेंजियल गिल स्लिट्स, राइट? यस। अब यहाँ पे क्या दिया है? दे आर 1 to more गिल स्लिट्स। ओके, ठीक है, समझा? एक से ज्यादा फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। यस, कंटिन्यू। They are unisexual or some may be hermaphrodite. Example, balanoglossus, saccoglossus. तो बेलांगिलोसिस या फिर सैकोग्लोसिस, अब इसमें से मेन चीज ये है कि few of them are unisexual whereas few can be hermaphrodites. Hermaphrodite मतलब involving both the male and female sexes. ठीक है, fine. Shall we move to the next one? मैम बोलो। फेरिंजियल गिल स्लिट्स जो है वो 1 भी प्रेजेंट रह सकता पैर में रहेगा ना हमेशा। ओके मैम। बिकॉज व्हेन यू ऑब्जर्व फिश को जब ऑब्जर्व करते हो, समझो ये फिश का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे तो दिस साइड एक कट रहेगा, ये कट रहेगा, दैट इज योर फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ओके मैम। ठीक है, यस, नेक्स्ट। यस निहित, तुम ही पढ़ लो नेक्स्ट वाला। Phylum Chordata. These animals have supporting notochord in their body. All chordates are included in the same phylum. The phylum Chordata is classified into 3 subphyla. Following are important characteristics of phylum Chordata. Okay, wait for a Point minute. Mute yourself. Okay. I think ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए ना, अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी दिया है। तो मुझे जरा एक क्वेश्चन करने दो। अभी क्या दिया है? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेज। ओके, सो नोटोकॉर्ड कोई भी डेवलपमेंटल स्टेज के टाइम पे प्रेजेंट रहेगा। इट कैन बी ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज, इट कैन बी ड्यूरिंग द एडल्ट स्टेज, एनी ऑफ द टाइम। Pharyngeal gill slits are present in the body during at least any developmental stage. Okay, so gill slits का भी सेम बोला गया है। Single tubular spinal cord. So spinal cord is present in the dorsal side. So yes, Devika, can you tell me dorsal side मतलब कहाँ पे present रहेगा? Side means upper body which is facing to the sun. Yeah, right. So अगर ऐसा है organism, so this part which is facing to the sun, this is your dorsal part. Okay, so spinal cord will be present here. ठीक है, और क्या दिया? हार्ट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड, सो हार्ट विल बी प्रेजेंट फ्रॉम हियर, किसी भी एरिया में अंदर की तरफ प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इन द वेंट्रल साइड, ठीक है? ओके, I'm really happy that at least ventral, the dorsal, aquatic, terrestrial, amphibians, reptiles, ये सारी चीजें आपको पता है। और अब तो एंड ऑफ द चैप्टर पे आ गए हैं तो पता होना ही चाहिए वैसे भी, बिकॉज इफ यू ऑल नो दिस, मैंने बोला था कि अगर ये टर्म्स तुम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में ही अच्छे से पढ़ लिए तो देखो टॉपिक कैसे इजीली जा रहा है। आर यू फीलिंग कि वो बहुत टफ है करके? नो, सिर्फ थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने के लिए, वो भी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर तुम लोग बार बार उसको रीड करते हो तो वो हो जाएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, या फिर याद भी रह जाएगा। जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला या मैंने डिप्लोब्लास्टिक बोला, तो स्टार्टिंग में हम जितनी बार उसको रिवाइज किया है वो आप लोग के यहाँ पे फिट हो गया रहेगा। डिप्लोब्लास्टिक इज 3, डिप्लोब्लास्टिक इज 2, सिमेट्री इज एग्जैक्ट 2 halves, एसिमेट्री इज नो सिमेट्री। तो ये चीजें आपको जब जितनी बार आप रीड करोगे उतना ज्यादा यू विल स्टार्ट गेटिंग परफेक्ट इनटू दैट। So I think for the whole chapter it goes like that. So आज अगर होता है तो today we will try to finish off the chapter. Otherwise अगर क्लास वाला जो सेक्शन है, लास्ट वाला जो क्लासेस जो बाकी है, mammals, then aves, then reptiles, अगर वो सब बाकी है तो that we can take in the next lecture. तो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा? स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ या फर्स्ट 15 मिनट्स या 20 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर हम लोग इसमें खत्म कर देंगे। एंड जैसे ही ये पार्ट खत्म हो जाएगा वी विल टेक अ 2-3 मिनट्स का ब्रेक एंड इमीडिएटली वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। Am I clear till here? Okay. Yes. Fine. Yes, miss. So next one. Okay. Next, Abhishek, are you there?
Yes. Abhishek R. Can you read the next part? Yes, miss. Miss at all 4 points. Yes. Yeah. First, notochord is present in the body during No, at no, no, least. no. Beta, we have completed those. You can start with the next, that is the subphylum. तो यहाँ पे अभी हम जो पढ़ने वाले हैं ये कॉर्डेटा फाइलम के सब फाइलम्स है। अच्छा, हम लोग कॉर्डेटा के अंदर और डेप्थ में जा रहे हैं, तो 3 सब फाइलम्स पढ़ना है और उसके बाद में हमको क्लास भी पढ़ना है। तो सबसे पहले सब फाइलम देखते हैं। सो यूरोकॉर्डेटा, दैट्स द नेम। नाउ यू कैन स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टार्ट। A subphylum Urochordata. First, these are marine animals. Second, this body is covered by skin-like test or their body. Skin-like this body. Their body is covered by skin-like test or tunic. Third, larvae of these animals are freely swimming, and notochord is present in only tail region of larvae. Hence, they are called as Urochordata. Fourth, larvae metamorphose into adults after settling down at bottom of the sea. If generally these animals are hermaphrodite. Examples: Herdmania, Doliolum, Oikopleura. I repeat, Herdmania, Doliolum, Oikopleura. Okay? अभी एक चीज इसमें ये है कि मैम क्या बोला गया है, ये टेस्ट और ट्यूनिक क्या है? क्यूटिकल के बारे में पढ़ा है हमने सबसे पहले फाइलम में। क्यूटिकल इज दी सॉफ्ट, और यू कैन से नॉट सॉफ्ट एक्चुअली, बट हाँ, मतलब जस्ट फॉर प्रोटेक्शन। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्रोटेक्शन के लिए वो ऑर्गेनिज्म के जो आउटर मोस्ट लेयर है, वो कवरिंग है, उसको क्यूटिकल कहा जाता है। उसी तरीके से यूरोकॉर्डेट्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका कवरिंग होगा टेस्ट या ट्यूनिक से। तो उनका आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन विल बी टेस्ट और ट्यूनिक। लार्वे ऑफ दिस एनिमल्स आर फ्रीली स्विमिंग। ओके, सो अगर लार्वे मतलब द फर्स्ट स्टेज, तो वो लोग फ्रीली स्विमिंग रहेंगे, नोटोकॉर्ड में प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कहाँ पर? सिर्फ टेल रीजन में रहेगा। अब क्या दिया है? टेल रीजन में सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, मतलब पूरे थ्रू आउट द बॉडी में प्रेजेंट है क्या? नो, ओनली इन स्पेसिफिक रीजन, इसीलिए उसको क्या कहा जाएगा? यूरोकॉर्डेटा। तो मैम यूरोकॉर्डेटा क्यों बोला, इसको हेमिकॉर्डेटा क्यों नहीं बोला है हमने? बिकॉज यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा क्यों नहीं बोल सकते? ओनली टेल रीजन में प्रेजेंट है, तो हमने उसको यूरोकॉर्डेटा में कंसिडर कर लिया है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, लेकिन कहाँ पर? यूरोकॉर्ड, आई मीन दिस थिंग ओनली इन द टेल रीजन। ठीक है, अभी हेमिकॉर्डेटा का क्या कनेक्शन है? फिर हमने अभी तक जो फाइलम्स देखे थे उसमें सारे में मोस्टली, मतलब वो तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे नो, लाइक नॉन कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल्स थे या नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम्स थे। तो हेमिकॉर्डेटा बीच में क्यों दिया गया था? सो इफ यू सी हियर कि हेमिकॉर्डेटा यहाँ पे दिया है, एकाइनोडर्मेटा इज द लास्ट फाइलम, एंड उसके बाद अपन फाइलम कॉर्डेटा से स्टार्ट करने वाले थे। सो बिफोर मूविंग टू कॉर्डेटा देयर वाज अ लिंक ऑफ एनिमल्स। तो ये जो बलैंगोलोसिस या ये जो हेमिकॉर्डेटा वाले ऑर्गेनिजम्स है या एनिमल्स है, these are the link between your non-chordates and chordates. Am I clear till here? Am I confusing you people? No. समझा? मतलब अभी तक हमने जो भी फाइलम्स देखे, एनालिडा, पोरिफेरा, एस्केलामेंथस एटसेट्रा, ये सब है नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स के फाइलम्स है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स के क्या है? तो कॉर्डेट्स में यू हैव डिफरेंट, जिसमें प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, सब कुछ है, लेकिन सडनली ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है क्या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में? या फिर सडनली नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो सकता है क्या? नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा क्या? नहीं। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो है हेमिकॉर्डेटा। तो दिस हेमिकॉर्डेटा में जो बलैंगोलोसिस है, दिस इज परसुइंग, और यू कैन से इट इज कंस्टिट्यूटिंग ऑफ बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज थोड़ा सा कॉर्डेट भी है और थोड़ा सा नॉन कॉर्डेट भी है। Am I clear till here? Yes. Yes. समझा ना मैंने क्या बोला? ठीक है, फाइन। सो वो तो हो गया, उसके बारे में भी यूरोकॉर्डेटा में देखते हैं क्या दिया है। इनके जो लार्वे हैं वो सबसे पहले तो फ्री लिविंग रहेंगे, ओके, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो जो भी लार्वे है दे स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू एडल्ट्स। ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही ना, छोटे से बड़े में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन कैसे कन्वर्ट होंगे? तो वो जैसे ही लाइक वो नीचे एट द सी के बॉटम पे वो धीरे धीरे जब सेटल होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहां पे जाके ही उनका क्या होगा? लार्वल से एडल्ट में कन्वर्जन या लार्वल से एडल्ट में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। स्टार्टिंग स्टेज क्या है? लार्वल स्टेज।
when they are in the तो मैम याद क्या रखना है, when they are in the larval stage they are free swimming, एकदम freely swimming करते हैं, freely moving रहते हैं, और धीरे धीरे जब वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं या ट्रांसफॉर्म होते हैं तो वो सी के बॉटम पे सेटल हो जाते हैं. Am I clear till here? Yes, miss. These animals are hermaphrodite having both the sexes in one, so that is understood. इसमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल आप बाय हार्ट कर लें. ठीक है, shall we move to the next one? Yes, miss. Yes. Okay, yes, continue reading. Yes, read. कौन रीड कर रहा था? Nobody was reading. अभिषेक रीड कर रहा था. अभिषेक read. Where are you? कहाँ चला गया, गायब हो गया. Hello, miss. Okay. Hello. Subphylum Cephalochordata. These are small fish-like marine animals. Small तो समझा, fish-like भी समझा, marine भी समझा. Okay. Notochord is present throughout the body length. Okay. Example देख लेते हैं. Can you see the example, all of you? Am I audible to all of you? Yes, Yes, miss. तो yes no तो बोलो. एग्जाम्पल दिख रहा है तुम लोग को कि पूरा Yes, miss. गिल्स के पहले से लेके पूरा एंड एनस तक जो प्रेजेंट है वो है योर नोटोकॉर्ड. Pharynx is very large and contains the gill slits. अभी निहित, are you there? Yes, ma'am. हाँ, तो your question was कि क्या पूछा तुमने गिल स्लिट्स के बारे में? क्या पूछा था कि सिंगल रहेगा या सिंगल नहीं रह सकता क्या? नहीं, सिंगल नहीं रहेगा, पैर में रहेगा. तो यहाँ पे देखो गिल स्लिट्स का कितना ज्यादा एग्जांपल्स है. कैन यू सी कितने सारे हैं एक साथ, वो उनका नंबर कितना ज्यादा है. तो वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, कितना पैर में रहेगा या कितना नंबर में प्रेजेंट रहेगा. लेकिन गिल स्लिट जरूर रहेगा बिकॉज वो उनको रेस्पिरेशन के लिए चाहिए. एम आई क्लियर टिल हियर? Yes. Yes, miss. ओके. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, pharynx is very large. ओके, pharynx जितना बड़ा है इसीलिए उसमें गिल स्लिट्स भी बहुत ही ज्यादा है. More amount of they can keep on respiring. These animals are unisexual, that is separate sexes, male as well as the females. समझ में आया सबको यहाँ तक? Yes, You are clear till here? Yes. ओके, एक लास्ट वाला सब फाइलम देखते हैं आज के लिए. सब फाइलम वर्टिब्रेटा या फिर क्रेनियाटा. अभी कुछ ये पढ़ के लगता है कि आप कुछ पता है हमको इसके बारे में? अभी पढ़ के मत बताओ वहां पे. वर्टिब्रेटा पढ़ के तुमको कुछ भी याद नहीं आता है. Vertebral column. एग्जैक्टली, वर्टिब्रल कॉलम. अब मैं क्रेनियाटा का बात करती हूँ तो ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है मैम. कहाँ पे पढ़ा है? 9th स्टैंडर्ड में. कोऑर्डिनेशन, ब्रेन, याद है? क्रेनियम पढ़ा Yes, miss. या सो क्रेनियाटा. तो ओके, सो दीज ऑर्गेनिजम्स विल बी वेरी मच डेवलप्ड, राइट? बिकॉज इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, फिर इनके पास क्रेनियम है, ठीक है ना? उसके बाद में मेन एक्चुअली जो अपना ब्रेन है वो प्रेजेंट है. सो आई थिंक दीज आर द मोस्ट डेवलप्ड वन. देखते हैं. इन दीज एनिमल्स द नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम. ओके, सो जहाँ पे नोटोकॉर्ड है दैट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, मतलब उसका प्रमोशन हो गया है. थोड़ा सा ओके पोजीशन में था, अभी वो प्रमोट होके हायर पोजीशन में चला गया जहाँ उसको कंप्लीटली वर्टिब्रल कॉलम मिल गया है. इन दीज एनिमल्स हेड इज वेल डेवलप्ड, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम. What is cranium? Brain is protected by cranium. So what is cranium? Cranial cavity. Cranial cavity है, okay, but cranium is your, सही है. The outermost एक layer जो तुम्हारे ब्रेन को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा या कवर करेगा, उसको हम cranium बोलेंगे. ठीक है. Endoskeleton, अंदर वाला, inside body of the this thing, skeleton is either cartilaginous or bony. Ma'am, what is the difference between cartilage and bone? हमको वापस 9th स्टैंडर्ड में जाना पड़ेगा. चलो जाते हैं 9th स्टैंडर्ड में. कौन से चैप्टर में जाने का सवारिश बता जरा. 9th स्टैंडर्ड के कहाँ पे पढ़ा था हमने कार्टिलेज एंड बोन? याद करो. टिश्यूज के चैप्टर में था, याद है? Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Audible. है ना?
तो बताओ कौन सा चैप्टर था वो टिश्यूज का? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। मैम 17 मतलब 17 17 चैप्टर में कौन सा टिश्यू में दिया था ये? विच टिश्यू वाज दैट जिसमें हमने कार्टिलेज और बोन के बारे में? कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमने बोन, फिर बोन, कार्टिलेज, टेंडेंस, लिगामेंट्स, उसके बारे में पढ़ा था, राइट? यस मिस। ओके, सो उसमें हमने देखा था, सो कार्टिलेज और बोन में क्या फर्क है? बोन तो सबको पता है ना, कि वो भी नहीं पता? Yes. बोन सबको पता है। अब कार्टिलेज क्या है? सो व्हाट यू कैन डू इज टच योर ईयर। ईयर में सबसे ऊपर वाला जो है पार्ट, दैट इज हैविंग अ बोन एज वेल एज कवर्ड विद स्किन, दैट इज कार्टिलेज। मतलब थोड़ा सा बोनी जैसा अपीयर होगा, बट सॉफ्ट बोन बोल सकते हैं उसको, ईयर पिना, राइट? दैट इज योर कार्टिलेज, द कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर। समझ रहा है कि कंफ्यूज हो रहे हो? समझ रहे हैं। Yeah, so endoskeleton of these organisms who are vertebrates, it can be either cartilaginous or it can be bones. Now what you can do is vertebrata और craniata का examples तुम लोग find out करोगे, ये भी तुम्हारा homework है, ठीक है? Just put examples of vertebrata, subphylum या फिर examples of subphylum craniata, दोनों same ही है, slash डाला है मतलब दोनों same है। Some chordates are jawless, whereas some are with jaws. What is jaw? Yes. Jaw line होता है, right? This is our jaw. This part is our jaw. Jaw line होता है ना? Am I audible to all of you? Yes. Okay, so jaw line होता है, boys को अच्छे से पता होगा, jaw line maintain किया जाता है, this is your jaw, right? So this, the one who holds your teeth tightly are called as your jaw, ठीक है? So strong jaw present है, I mean crocodiles में देखा होगा, humans also have strong jaw, ठीक है? We have strong jaws, इसके लिए अपना teeth are held in a good position. So the one who are having the jaws, what is the term used there? The one having the jaws and one without the jaws. I think having the jaws are agnathas and without the jaws are gnathosomatas. तो वहां पे जो G है वो silent है. How you will pronounce? Gnathosomata. Am I clear till here? Yes, miss. Yes miss. Fine. अभी आज ये जितना भी पढ़ा है, लास्ट टाइम मैंने बोला था पॉइंटर्स के हिसाब से आंसर्स लिखो, फाइलम्स का लिखा? Yes, miss. Yes. Okay, fine. So I'll ask just one person to read and show me whichever phylum. Yes, Mamta? Ma'am. Yes, ma'am. Okay, just a minute, Mamta. Anybody having doubt? मैम आपने बोला था डायग्राम्स भी दिखाओगे। वेट ना, चैप्टर खत्म हुआ है क्या? नहीं मतलब हो रहा है, खाली याद दिला रहा था। डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में अपना लास्ट का जो पैच बाकी है उतना खत्म कर देंगे, उसके बाद में तुम लोग को डायग्राम्स भी दिखा दूंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी ले लेंगे साइड बाय साइड 5-10 मिनट्स का, एंड देन वी विल कंक्लूड दैट दिस चैप्टर इज ओवर। ओके, यस ममता, कैन यू टेल मी अबाउट पोरिफेरा, क्या क्या पॉइंट्स नोट डाउन किया तुमने? Force bearing, first points. Okay. Second, marine and freshwater dwellers. Okay. Third, asymmetrical body. They Okay. have, and fourth, cells polar. They have polar cells. And fifth, do not show locomotion. That is sedentary. Okay, fine. So इसी तरीके से आपने हर एक फाइलम के लिए बनाया है, ऐसा मैं एज्यूम कर लूं? Yes, ma'am. ओके, सबने बनाया है, राइट? एवरीबॉडी हैज डन इट। सो आज हमने जो भी फाइलम्स खत्म किए या आज हमने जो भी सब फाइलम्स खत्म किए, वो सब फाइलम्स और फाइलम्स का भी आपको पॉइंटर के हिसाब से आंसर्स बनाना है। एम आई क्लियर? Yes. ओके, फाइन। सो आई थिंक ठीक है, फिर आज मैं ज्यादा तुम लोग को और ज्यादा ओवरडोज नहीं करना चाहती, आज हम इतना ही लेंगे। बट बिफोर लिविंग आई नीड टू सी योर होमवर्क, तो एक बार मुझे बस नोटबुक दिखा दो जहाँ पे तुमने पॉइंटर्स लिखा हुआ है। Yes, miss.
यस देविका, ओके देखा. हु एल्स? ओके वैष्णवी मोरे. वैष्णवी, हाउ हैव यू रिटन इट? पॉइंट्स में नहीं लिखा है क्या? अच्छा पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है. यस आई कैन सी इट. ज्ञानेश्वरी पॉइंट्स मध्ये. गुड गुड, ऐसे ही लिखना है. मेडुसा, पॉलिप, राइट. ज्ञानेश्वरी का देख लिया, सबारिश का भी देख लिया, ध्रुव का भी देखा, ओके. वैष्णवी का भी देखा, ओके. श्रेया, where's your homework? श्रेया, कशिश, अभिषेक, वैभवी, निहित. Yes, miss. Then Pragati, Hitesh. Ma'am, I can दिखा see रहा हूँ everybody's homework. नहीं, that's what I'm reading your name so that मैंने इतने लोगों का देखा है. That's what I'm telling. श्रेया, okay, ठीक है. Then निहाल, show me. ओके, निहाल ने भी अच्छे से बनाया है, गुड. हरिश्चंद ने भी बनाया है, वेरी नाइस. ओके, सो कशिश, वेयर इज योर होमवर्क? यू शोड मी? Yes, miss. ओके फाइन. और हर्षल शर्मा, ओके. पॉइंट्स में लिखा है ना कि सिर्फ पैराग्राफ लिख दिया है? पॉइंट्स में लिखा है मिस. ओके गुड. नितेश शेट्टी, वेयर आर यू? संचिता गोसावी, मनीष पेडनेकर, यशुदास. यशुदास तो दिखा ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया. Where are these people? ये लोग तो दिखते ही नहीं है मुझे कभी भी. हाँ, कभी भी नहीं दिखते मतलब. दिलशाद, दिलशाद, where are you? Yes, miss. Yes, where's your homework and where are you first of all? Yes, Dilshad, where are you? Okay, I can see your homework. ठीक है. Manish also, I can see your homework. Okay. Then ठीक है, चलेगा. बहुत लोगों ने फिर भी दिखाया नहीं है. So the people who have not shown, अभी एक काम करने वाली हूँ मैं. अभी केशव सर को बताने वाली हूँ कि ये चैप्टर अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो आप बिंदास इनका टेस्ट लो, इनका ओरल लो, कुछ भी करो. So I can tell them freely now. So I think तुम लोगों को प्रिपेयर होना चाहिए, isn't it? So start preparing. तो अभी नेक्स्ट टाइम, आज जिन्होंने भी आंसर नहीं किया है उनके लिए लास्ट वार्निंग था. नेक्स्ट लेक्चर में यू हैव टू कम प्रिपेयर्ड बाय एनी कंडीशन, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में तो ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, सो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे. Am I clear till here? Okay. Yes. Diagrams. Yeah. Miss, diagrams. What happened? Diagrams. What happened? Diagrams. Diagrams नेक्स्ट लेक्चर में चेक करती हूँ. ओके. नहीं, ये टाइम कुछ नहीं दिया है. नहीं है डायग्राम. हाँ, कुछ दिया नहीं है आज होमवर्क के लिए.